Ey, qanaqasan? Yaxshimisan? Yaxshi, o'zingizchi yaxshi Qizimsan? yuribsizmi? Yaxshi. Ey, jamaki kun bo'yi birga bo'ldik. Bir og'iz aytmabsiz-a, qizim kelibdi deb. Senga surpriz qildim-da. Aydapa tanidingizmi? Yo'q, o'zini tanishtirmaguncha tanimadim. Katta qiz bo'lib ketibdi-ya. Ha, o'zim ham aeroportda taniman. Katta qiz bo'lib ketibdi. Xush kelibsan. Rahmat. Xursandmiz. Oyi, bu Gulla qayerdan keldi? Bolam Murod olib keldi menga. Ha, bolam aytgancha Murod Jamila bilan tanish ekan, bir-birini tanishar ekan. Ha? Ha, yo'q, qayerdan? Voy, Bruklinda hamma bir-birini taniydi-yu. Ha? Ha, yo'q, qayerdan? Voy, Bruklinda hamma bir-birini taniydi-yu. Undan ehtiyot bo'ling, Aziz aka. Nima yo'qlatar ekan? Yo'q. Mana oyimni uxlatib ketdi-yu. Murodmi? Ha, Murod. Yo'q. Dada, sizga aytgandik-ku. Xo'p, Masha Murod bo'ladi-da, oyim uxlatib ketgan. U menga uxlatgan. adashmayapsanmi? Yo'q, kazinoda qimor o'ynashini hamma biladi. Amerikada ko'pchilikdan qarzi bor. Qizim bilib bilmasdan gapirma. Murod qayerda o'zi? Bor chaqir. Xonasida bo'lsa kerak. Chaqir menga Murodni. Maryam, tanidingmi? Jamilani yoshliginglarda o'ynardinglar-ku. Jamshid akangni qizi. Tanmadim. Shu Maryammi? Ha, Maryam shu. Katta bo'lib ketibdi. Qara, o'zingni ham katta bo'lib qolganingni kichkina edinglar-da eslay olmaysizlar. Oying yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Qanchaga kelding? Shu bir haftalarda qaytaman. Hujjatlarimni to'g'irlashga keldim. Dadamni sog'inuvdim. Shunga. Jonim meni. Katta bo'lib qolganingni qara. Siz o'zgarmabsiz, hali ham o'sha yoshsiz. O'zgardim jonim, hayot qaritdi meni. Ha? Kayfiyating yo'q? Endi men jinoyatga qo'l urmoqchi emasman. Aldamoqchi Oyoq yaxshimi? Yuribdi-ku. Demak, yaxshi. emasman. Kelinoyim ham jinoyatchi bo'lib qolmasinlar. Mashhidga pora qo'ydilar-da. Aka yaxshimisiz? Bitta tibbiyot olami? Keyin biz doktor yuramizmi? Xo'jayinimga homilador deb alding dedilar. Nima deganingiz bu, voy? Hozir odamlar kiyimiga qarab, mashinasiga qarab baho beryapti-yu. Kiyim yo'q, tuzukroq. Yo'q. Bo'lmagan gap. Bor. Kiyim topamiz. Keling. Boshim qotyapti. Ertaga go'zalla dast kelar ekan. Kutib olishim kerak. Uydagilar yaxshimi? Yaxshi, Aydapam yaxshimilar? Yaxshilar, yuribdilar. O'zinglar tinchmi? Tinch. O'shanga Kiyim muammo emas. Pora berish, aldash, jinoiy ishligini bilasiz-a? Bilaman. Topiladi, ish ko'p. To'la kiyim. Bilasiz ayolingizmi? Azaka. Yur, menga qarash bor. Xo'sh, mana. Kelingni olib keluvdim. Har bir otasi bergan savoliga 7 o'ylab javob ber. Kiyim topiladi. अस्सलाम गाइस, इस ड्रामे के आगाज में दिखाया जाता है कि जैन और सुल्तान बैठे होते हैं कि खाना खाते हुए वो आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि जैन तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो। तो सुल्तान आगे से कहता है कि मैं तो बस इस वजह से शादी नहीं कर रहा क्योंकि मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा परेशानी और मुश्किलात आई हुई हैं। इस वजह से अगर मैं इस काबिल होता कि मैं शादी करने के काबिल हो गया हूँ तो मैं शादी ज़रूर कर लेता। तो सुल्तान आगे से कहता है कि नहीं यार, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, अब तुम्हारी उम्र हो गई है। तो आगे से जैन कहता है नहीं यार, मैं कर लूंगा,
लेकिन अब मेरे पास कुछ सरमाया नहीं है। अगर मेरे पास सरमाया होता तो मैं शादी ज़रूर कर लेता और उनका खाना पीना जारी रहता है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें एक टावर को दिखाया जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ैन और सुल्तान दोनों बैठ के चाय पी रहे होते हैं। तो नाज़रीन एक दफ़ा फिर सीन बदलता है और हमें हॉस्पिटल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर हसनैन आ रहा होता है और आके रुकैया से कहता है कि रुकैया तुम यहाँ पर क्या हो। रुकैया जल्दी से आती है और उसे एक चाय का कप देती है और कहती है कि ये लो, तुम ये पी लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो आगे से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो आगे से कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी फ़िक्र क्यों ना करूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। क्योंकि वो आपस में मियाँ बीवी होते हैं। हसनैन और रुकैया दोनों आपस में बातें करते ही रहते हैं, उनकी बातें जारी रहती। हसनैन रुकैया से कहता है कि यार तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती हो, हमें अब बच्चा ले लेना चाहिए। तो वो आगे से कहती है कि क्यों नहीं, हम ले लेंगे, अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी हम शादीशुदा ज़रूर हैं लेकिन अभी 2-3 साल हुए हैं हमारी शादी को, लेकिन जब हमारी उम्र हो जाएगी हम बच्चा भी ले लेंगे। तो वो आगे से शर्माती हुई कहती है। तो आगे से हसनैन कहता है कि नहीं, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो, मुझे लोग बातें करते हैं। वो आगे से मुस्कुराती ही रहती है। तो नाज़रीन एक दफ़ा फिर सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपना बैग उठाती है और कहती है चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं और जाकर अपना चेकअप करवाते हैं। तो हसनैन और रुकैया वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें सुल्ताना को दिखाया जाता है जो कि ज्वेलरी शॉप पर होती है। सुल्ताना ज्वेलरी शॉप वाली से कहती है कि मुझे एक डायमंड सेट दिखा दो। वो उसे डायमंड सेट दिखाती है और कहती है कि ये आप पर बहुत ही ज़्यादा सूटेबल रहेगा। सुल्ताना बहुत ही ज़्यादा मक्कार और चालाक औरत होती है। वो जो शॉपकीपर होती है वो कहती है कि आप ऐसा करें कि ये डायमंड सेट आपको ले लेना चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे ये डायमंड सेट नहीं चाहिए, आप ऐसा करें कि ये डायमंड सेट आप किसी और को दे देना। तो वो आगे से शॉपकीपर कहती है कि मेरा तो ये बिक जाएगा, लेकिन अगर आपको ये पसंद है तो आप ये ले लें। तो वो सुल्ताना आगे से कहती है कि नहीं, मैं नहीं लूँगी, मुझे ये नहीं पसंद, तुम मुझे कोई और सेट दिखा दो। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि वो औरत वहाँ से चली जाती है। सुल्ताना वहाँ पर उसे देखने लग जाती है। तो नाज़रीन हमें एक दफ़ा फिर सीन बदलते हुए दिखाई देता है कि रुकैया और हसनैन हैं वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाते हैं और वापस मुड़कर देखते हैं कि नहीं, वहाँ पर तो जेंट्स का जाना अलाउ नहीं है, तुम अकेली चली जाओ। तो रुकैया वहाँ पर अकेली जाती है। एक दफ़ा वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आज हमारा ट्रीटमेंट होना है, हम माँ बाप बन जाएंगे, हमारी प्रमोशन हो जाएगी। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। रुकैया उससे कहती है कि हम क्यों नहीं माँ बाप बनेंगे, हम ज़रूर माँ बाप बनेंगे, तुम हिम्मत मत हारा करो, कुछ नहीं होता। तो वो उसे समझाती रहती है लेकिन वो समझता नहीं और कहता है कि जाओ अब तुम अपना जाकर चेकअप तो क्यों नहीं करवा रही, तुम मेरे साथ बहस की जा रही हो। तो वो आगे से कहती है मैं बहस नहीं कर रही, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तो वो आगे से मुस्कुराने लग जाती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का जो होता है वो वहाँ से चला जाता है गुस्से में और कहता है कि जाओ, मैं जहाँ से जा रहा हूँ तुम जाकर अपना चेकअप करवाओ। तो वो लड़की कैबिन में जाती है और डॉक्टर से जाकर बात करती है और कहती है कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, हमारी शादी को 2-3 साल हो गए हैं, हमारे पास औलाद नहीं है। तो वो जो डॉक्टर होती है वो बातें सुनती है और कहती है कि कोई मसला नहीं है, आप जो हैं आप अभी यंग हैं, आपको औलाद होगी। तो वो उसका ट्रीटमेंट करती है और कहती है कि मैं आपका इतने मंथ ट्रीटमेंट करूंगी, आप मेरे पास डेली चेकअप के लिए आना। तो वो औरत आगे से कहती है ठीक है मैं आ जाऊंगी। तो डॉक्टर कहती है कि ऐसा करें कि आप यहाँ से चली जाएं। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो दूसरी तरफ हमें ज़ैन को दिखाया जाता है जो कि सुल्ताना को मिलने आता है। सुल्ताना उसे देखकर चौंक जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो ज़ैन उसे देखकर हंसने लग जाता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो ज़ैन आगे से सुल्ताना कहती है कि तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ। तो वो वहां से चला जाता है। तो सुल्ताना पीछे मुड़कर देखती ही रहती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि जो उसका शोहर होता है वो उससे कहता है मिलना ही होता तो वो यहाँ पर आ जाता है, कोई मसला नहीं है। नाज़रीन यहाँ पर हमारे इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम गाइस। इस ड्रामे के आगाज में हमें दिखाया जाता है कि जैन और सुल्तान बैठे होते हैं कि खाना खाते हुए वो आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि जैन तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो। तो सुल्तान आगे से कहता है कि मैं तो बस इस वजह से शादी नहीं कर रहा क्योंकि मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा परेशानी और मुश्किलात आई हुई हैं। इस वजह से अगर मैं इस काबिल होता कि मैं शादी करने के काबिल हो गया हूँ तो मैं शादी ज़रूर कर लेता। तो सुल्तान आगे से कहता है कि नहीं यार, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, अब तुम्हारी उम्र हो गई है। तो आगे से जैन कहता है नहीं यार, मैं कर लूँगा, लेकिन अब मेरे पास कुछ सरमाया नहीं है। अगर मेरे पास सरमाया होता तो मैं शादी ज़रूर कर लेता। और उनका खाना पीना जारी रहता है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें एक टावर को दिखाया जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैन और सुल्तान दोनों बैठ के चाय पी रहे होते हैं। तो नाज़रीन एक दफ़ा फिर सीन बदलता है और हमें हॉस्पिटल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर हसनैन आ रहा होता है और आके रुकैया से कहता है कि रुकैया तुम यहाँ पर क्या हो। रुकैया जल्दी से आती है और उसे एक चाय का कप देती है और कहती है कि ये लो, तुम ये पी लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो आगे से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो आगे से कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी फ़िक्र क्यों ना करूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। क्योंकि वो आपस में मियाँ बीवी होते हैं। हसनैन और रुकैया दोनों आपस में बातें करते ही रहते हैं, उनकी बातें जारी रहती हैं। हसनैन रुकैया से कहता है कि यार तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती हो, हमें अब बच्चा ले लेना चाहिए। तो वो आगे से कहती है कि क्यों नहीं, हम ले लेंगे, अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी हम शादीशुदा ज़रूर हैं लेकिन अभी 2-3 साल हुए हैं हमारी शादी को, लेकिन जब हमारी उम्र हो जाएगी हम बच्चा भी ले लेंगे। तो वो आगे से शर्माती हुई कहती है। तो आगे से हसनैन कहता है कि नहीं, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो, मुझे लोग बातें करते हैं। वो आगे से मुस्कुराती ही रहती है। तो नाज़रीन एक दफ़ा फिर सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपना बैग उठाती है और कहती है चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं और जाकर अपना चेकअप करवाते हैं। तो हसनैन और रुकैया वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें सुल्ताना को दिखाया जाता है जो कि ज्वेलरी शॉप पर होती है। सुल्ताना ज्वेलरी शॉप वाली से कहती है कि मुझे एक डायमंड सेट दिखा दो। वो उसे डायमंड सेट दिखाती है और कहती है कि ये आप पर बहुत ही ज़्यादा सूटेबल रहेगा। सुल्ताना बहुत ही ज़्यादा मक्कार और चालाक औरत होती है। वो जो शॉपकीपर होती है वो कहती है कि आप ऐसा करें कि ये डायमंड सेट आपको ले लेना चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे ये डायमंड सेट नहीं चाहिए, आप ऐसा करें कि ये डायमंड सेट आप किसी और को दे देना। तो वो आगे से शॉपकीपर कहती है कि मेरा तो ये बिक जाएगा, लेकिन अगर आपको ये पसंद है तो आप ये ले लें। तो वो सुल्ताना आगे से कहती है कि नहीं, मैं नहीं लूँगी, मुझे ये नहीं पसंद, तुम मुझे कोई और सेट दिखा दो। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि वो औरत वहाँ से चली जाती है। सुल्ताना वहाँ पर उसे देखने लग जाती है। तो नाज़रीन हमें एक दफ़ा फिर सीन बदलते हुए दिखाई देता है कि रुकैया और हसनैन हैं वो हॉस्पिटल चले जाते हैं, हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाते हैं और वापस मुड़कर देखते हैं कि नहीं, वहाँ पर तो जेंट्स का जाना अलाउ नहीं है, तुम अकेली चली जाओ। तो रुकैया वहाँ पर अकेली जाती है। एक दफ़ा वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आज हमारा ट्रीटमेंट होना है, हम माँ बाप बन जाएंगे, हमारी प्रमोशन हो जाएगी। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। रुकैया उससे कहती है कि हम क्यों नहीं माँ बाप बनेंगे, हम ज़रूर माँ बाप बनेंगे, तुम हिम्मत मत हारा करो, कुछ नहीं होता। तो वो उसे समझाती रहती है लेकिन वो समझता नहीं और कहता है कि जाओ, अब तुम अपना जाकर चेकअप तो क्यों नहीं करवा रही, तुम मेरे साथ बहस की जा रही हो। तो वो आगे से कहती है मैं बहस नहीं करी, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तो वो आगे से मुस्कुराने लग जाती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का जो होता है वो वहाँ से चला जाता है गुस्से में और कहता है कि जाओ, मैं जहाँ से जा रहा हूँ तुम जाकर अपना चेकअप करवाओ। तो वो लड़की कैबिन में जाती है और डॉक्टर से जाकर बात करती है और कहती है कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, हमारी शादी को 2-3 साल हो गए हैं, हमारे पास औलाद नहीं है। तो वो जो डॉक्टर होती है वो बातें सुनती है और कहती है कि कोई मसला नहीं है, आप जो हैं आप अभी यंग हैं, आपको औलाद होगी। तो वो उसका ट्रीटमेंट करती है और कहती है कि मैं आपका इतने मंथ
ट्रीटमेंट करूंगी, आप मेरे पास डेली चेकअप के लिए आना। तो वो औरत आगे से कहती है ठीक है मैं आ जाऊंगी। तो डॉक्टर कहती है कि ऐसा करें कि आप यहाँ से चली जाएं। तो वो वहां से चली जाती है। तो दूसरी तरफ हमें जैन को दिखाया जाता है जो कि सुल्ताना को मिलने आता है। सुल्ताना उसे देखकर चौंक जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो जैन उसे देखकर हंसने लग जाता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो जैन आगे से सुल्ताना कहती है कि तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ। तो वो वहां से चला जाता है। तो सुल्ताना पीछे मुड़कर देखती ही रहती है। तो नाज़रीन सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि जो उसका शोहर होता है वो उससे कहता है मिलना ही होता तो वो यहाँ पर आ जाता है, कोई मसला नहीं है। नाज़रीन यहाँ पर हमारे इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस ड्रामे के आगाज़ में मैं